Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our logical reasoning session number 2 being part of this Score Booster. I'm sure all of you are enjoying our journey for this Score Booster for your CLAT preparation. I'm sure that you are also getting a lot of advantage in terms of doing this practice questions. I'm sure you are also getting a lot of advantage in doing this practice questions. जो भी students अभी थोड़े थोड़े लेट ज्वाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल को and they are not aware a lot about ProTalent, let me tell them, the students, protalentdigital.com is your one-stop solution for all your learning needs for your CLAT preparation as well as for IIM IPM preparation. Here we try to give you a superb support for your CLAT preparation. We have also initiated a new course which is called Score Booster. Okay, apart from Score Booster, you have all the other content available which you can very well study, and in the Score Booster we try to cover certain important concepts, okay, so that you can grow in terms of your thought process, your knowledge, your skills, and in return it will grow your scores. So just give lot of focus on this particular preparation. Okay, चलिए ग्रेट. सो आज मैं बात करने वाला हूं सिलोजिज्म. बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे पीछे कि ये तो सिलोजिज्म लिखा है और ये भाई साहब सिलोजिज्म के बारे में कुछ बोल नहीं रहे. सो बिल्कुल आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, दैट सिलोजिज्म एक महत्वपूर्ण पॉइंट है. ठीक है, एक जमाने में सिलोजिज्म सिखाने में एरिस्टोटल एंड प्लेटो टुक some around 2 to 3 years. ठीक है, आज यही सिलोजिज्म, ठीक है, सीखने में कम समय लगता है. एरिस्टोटल और प्लेटो जनरली जो राजकुमार होते थे, दैट मीन्स द सन्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, उनको वो सिखाते थे, है ना, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे. ठीक है, या लेते भी नहीं थे या देते भी नहीं थे. ठीक है, बट दे यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस सिलोजिज्म. But in today's time, you can say prince and princess like you, who will take hardly 10 to 15 minutes to understand this. And believe me, this is the most easiest topic ever. और मेरा मानना है that every one of you will be in a position to solve the syllogism questions. है ना. अब ये syllogism के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे देके रखी है, that it's a kind of logical argument that applies. You can say deductive reasoning. This is important. Deduction करना, from a given statement you deduce another conclusion. Okay, to arrive at a conclusion, ठीक है, based on two or more preposition that are asserted or assumed to be true. So जो statement यहाँ पे देके रखे, that is to be assumed true, while उसके ऊपर से कंक्लूजन हमें देना है. ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ओके, अब सिलोजिज्म के कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं. ओके, सिलोजिज्म के कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड वो स्टैंडर्ड तरीकों का मतलब क्या है. ध्यान से सुनना. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर आइडिया. ओके, चलिए ट्राई करते हैं. हमें कितना आता है उसके ऊपर से फटाफट देखते हैं. सबसे पहला पार्ट आता है स्टेटमेंट का. इट सेज ऑल ए आर बी. दिस इज अ स्टेटमेंट. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट ऑल ए आर बी. ओके, लाइक ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जांपल आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, आर एग्रीमेंट्स. ओके, दिस इज basically the kind of example, but believe me, there is no need for any kind of examples. ठीक है, you have to assume जो भी दिया है वो सही है, ऐसा assumption करके आगे बढ़ना है. So all A are B, or there is a possibility that all A are B. Okay, so both possibilities are there. Okay, so this is a first statement. Okay, what I'm doing is I'm explaining
यू 4 sentences which are the backbone of syllogism. ठीक है, फिर हम उसके ऊपर से उनके कॉम्बिनेशन देखेंगे. ओके, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस. सेकेंड, ये बोलता है सम ए आर बी. ओके, सो दैट इज सम ए आर बी, और सम ए आर बी लिखा ऐसे जाता है सम ए आर बी. ओके, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट. ये एरिया है जहां पे आप फोकस कर रहे हैं. आप ये भी फोकस करते हैं दैट सम ए आर बी, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस एरिया सम ए आर बी, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फोकस. तो आप ये बोल रहे हैं कि कुछ ए बी है. ओके, नाउ डज दिस नेसेसरली मीन दैट सम ए आर नॉट बी? ठीक है, अब ये कंक्लूजन पे पहुंचना इज रियली नॉट पॉसिबल. ओके, ठीक है, अभी हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे. हमें सिर्फ ये पता है that some A are B, so we are just focusing on so this A are B. That's it. We are not bothered about other A. Okay, so we don't know about anything about other A. Okay, chaliye, great. Then we have third. It says some A are not B. Okay, so once again it is something like this. Some A are not B. So we are looking at this particular area. Okay, so we are looking at this particular area. All A are B देखा हमने, some A are B देखा. This is some A are not B. That means कुछ A B नहीं है. Okay, does this mean that some A are B? ये conclusion बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. Okay, so ये नहीं बोल सकते. So therefore we have to only see that we are saying some A are not B. That's it we are trying to say. Okay, and then number 4, that no A is B. That means A और B दोनों अलग अलग है. Okay, A और B दोनों अलग अलग है. So दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस हमने देखे. वापस देखते हैं एक एक करके ये एग्जैक्टली क्या बात कर रहा है. ओके, सो वापस, फॉर एग्जांपल व्हेन आई से नो ए इज बी, when I say no A is B, so that means they are different. Therefore, I can conclude that some A are not B. Okay, so from this I can conclude this. I hope this is very clear. Okay, so from no A is B, we can reach to some A are not B. मैं वहां पे जा सकता हूं. Yes, great. फिर मैं ये बोलूं that you can say all A are B. From there, can I say that some A are B? ये मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं. Okay, so that means I can talk about from all A से some A are B. No से I can reach to some A are not B. ठीक है, इतना बोल सकता हूं. ठीक है, इतनी कहानी मुझे पता है. So I can very well go and now solve the questions based on this given information. Okay, ठीक है, मेरा अप्रोच रहेगा solution through Venn diagram method, and I'm sure that's the perfect method to get an answer. There are few other methods as well. Okay, I'm sure you might have learned in a little different way. ठीक है, so don't worry about it. But मेरा समझना ये है कि Venn diagram gives you better perspective about solving this kind of questions. So here comes the types of questions. जो भी स्टूडेंट्स इन सबको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? You will be provided with, you can say, 2 data statements. उन डेटा स्टेटमेंट्स में जनरली जो भी हमने अभी सेंटेंस देखे, ऑल वाले, सम वाले और नो वाले, उनके कुछ अरेंजमेंट होंगे और उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन होगा. ओके, कंक्लूजन विल आल्सो बी समथिंग लाइक दैट. ओके, ठीक है, विच इज सम, ऑल या ऐसा कुछ होगा. ध्यान रहे इन सेंटेंसेस में. ओके, इन सेंटेंसेस में इफ आई से दिस सम गर्ल्स, ठीक है, दिस आर ब्रूनेट्स एंड ब्रूनेट्स wicked, so that means there are, मतलब इसको अगर मैं वेरिएबल बोलूं, so there is one variable, there is second variable and there is third variable. Okay, so this is first variable, this is second variable and this is third variable. General nature of the question would be there will be, you can say, 3 variables
variable 1 is connected to variable 2 and variable 2 is connected to variable 3 and therefore relationship is between variable 1 and variable 3. ये आपका जनरल नेचर होगा, ये एक जनरल नेचर है समझने के लिए. ओके, सो बेसिकली क्या होगा, एक कॉमन वेरिएबल होगा. ठीक है, अगर आपके सेंटेंसेस में अगर 4 वेरिएबल है, दैट मीन्स 2 सेंटेंस है, 4 वेरिएबल है, विच मीन्स कोई भी सेंटेंस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. सो देयरफॉर यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू एनी कंक्लूजन. सो वी से इट इज नो कंक्लूजन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. यस, चलिए ग्रेट. सो यहां पे क्या दिया है समझते हैं. सो यहां पे दिया है सम गर्ल्स आर ब्रूनेट्स. वी आर लीस्ट बॉदर्ड. इसका मीनिंग क्या होता है? सो आई एम रियली नॉट गोइंग टू वरी ऑन द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, इट सेज सम गर्ल्स are brunettes. So we are talking about this particular area. Okay, so this is some girls are brunettes. No brunette is wicked. No brunette is wicked. So wicked यहाँ पे बाहर हो सकता है. Wicked can be with the girl as well. Okay, but for sure वो brunette के साथ नहीं होगा. Okay, for sure वो brunette के साथ नहीं होगा. ठीक है, तो अब हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? हमारा कंक्लूजन होना चाहिए दैट इट इज वैलिड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. एनी कंक्लूजन विच इज वैलिड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इज द ओनली कंक्लूजन फॉर अस. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जो भी कंक्लूजन दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, वही कंक्लूजन हमारे काम का है. ओके, चलिए देखते हैं कैसे काम करेंगे इसको. इन्होंने बोला सम ब्रूनेट्स आर गर्ल्स. सम ब्रूनेट्स आर गर्ल्स, ये राइट है, बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज सम गर्ल्स आर ब्रूनेट, देयरफॉर सम ब्रूनेट्स आर गर्ल्स, दैट्स एक्सेप्टेबल रीजन. ओके, सम विकेड आर गर्ल. सम विकेड आर गर्ल, परफेक्ट है. ठीक है, सम विकेड आर नॉट गर्ल्स, दैट मीन्स दो अलग अलग है. यस, ठीक है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट दोनों केस में राइट है क्या? नहीं, दिस इज नॉट राइट इन बोथ द केसेस एंड देयरफॉर इज दिस कंक्लूजन वैलिड? No, second conclusion is not valid. So this is out of question for us. अगला, some girls are not wicked. ध्यान से सुनिए. Some girls which are brunette, some girls which are brunette are for sure not wicked, because no brunette is wicked. So the girls which are brunette are not wicked. Therefore ये पक्का है that some girls are not wicked. If I make विकेड, ये पूरा का पूरा कवर भी कर लो विकेड के लिए, ठीक है, फिर भी कुछ गर्ल्स ऐसी होगी जो विकेड नहीं है. सो दैट मीन्स थर्ड पक्का सही है. एंड नंबर 4, ऑल विकेड आर गर्ल्स. ऑल विकेड आर गर्ल पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट इस केस में पॉसिबल नहीं है. तो ये हर केस में राइट होना चाहिए था. सो फोर्थ सही नहीं है. सो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1 and 3 follow from the given statements. I hope this is very clear. Yes, chaliye great. So this is question number 1 is what we understood. Let's go and talk about question number 2. So indeed answer is, you can say C. Okay, so यहाँ पे आपको कुछ explanation दिया है जो आप PDF से ले सकते हैं. PDF आपको कहां से मिलेगी दोस्तों? You will be getting at protalentdigital.com. Okay, from protalentdigital.com you get this. Okay, now this question number 2 is very interesting. बहुत चैलेंजिंग है, ध्यान से देखिएगा. ओके, ये बोलता है all tractors are scooters. So this is tractor and this is scooter. Some scooters are boys. Okay, so this is some scooters are boys. Some scooters are boys. ऐसे भी हो सकता है. Okay, there is another possibility to make. Okay, so ये बोलता है some scooters are boys. ऐसे भी हो सकता है. Some scooters are boys. ऐसे भी हो सकता है. Some scooters are boys. ऐसे भी हो सकता है. Yes, so all these possibilities are there. Okay, so we have to see in all possibility all the conclusion should be right. Okay, पहला बोलता है all boys are scooters. ठीक है, all boys are scooters. ये 3 ब्लू केसेस में राइट है, पर ये जो रेड केसेस है उसमें वो राइट नहीं है. So this is not right. All boys are tractor. So there is only one case in which it is right. In rest of the cases
दिस इज नॉट राइट, ठीक है। सम ट्रैक्टर्स आर बॉयज, सम ट्रैक्टर्स आर बॉयज, यहाँ पे पॉसिबल है ये सब में, बट इन दिस सिनारियो इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। नो ट्रैक्टर इज अ बॉय, इस केस में राइट है और बाकी केसेस में राइट, मतलब ये एक केस में और ये एक केस में राइट नहीं है, सो इंडिविजुअली दे आर नॉट राइट, ओके, ठीक है, इंडिविजुअली दे आर नॉट राइट। सो व्हाट शुड बी द आंसर? देन इफ यू सी दिस वेराइटीज which says either A or B, that means either 1 or 4, या either 2 or 3, either 3 or 4, that follows. So what do you mean by either of them follows? ठीक है, either of them follow का मतलब हो जाता है कि if I say either, okay, if I say either 1 or 2 follows, उसका ये मतलब हो गया कि जब 1 फॉलो करता है सो 2 पक्का फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, और जब 2 फॉलो करेगा तब ये पक्का फॉलो नहीं करेगा, और ये दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, मतलब दोनों मिलाकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनना चाहिए और दोनों एक्सक्लूसिवली अलग अलग कहानियां है, ओके। सो ये समझना बहुत जरूरी है, ये मुद्दा आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग, ठीक है, व्हेन आई से इधर 1 और 2 फॉलोस, सो अगर 1 फॉलो होगा उस समय पे गारंटीड 2 को गलत होना पड़ेगा, और 2 सही होगा तो 1 को गारंटीड गलत होना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये आंसर दे पाएंगे। चलो ग्रेट, सो लेट्स अप्लाई हियर, ठीक है। अब इन्होंने बोला इधर 2 और 3 फॉलोस, 2 क्या बोलता है? ऑल बॉयज आर ट्रैक्टर्स, ऑल बॉयज आर ट्रैक्टर्स, ठीक है, मतलब ये एक केस हो गया, ठीक है, ओके। सो दूसरा क्या बोलता है? सम ट्रैक्टर्स आर बॉयज, ठीक है। अब ये दोनों को एक्सक्लूसिवली, पहला सही है तो दूसरा गलत हो ही नहीं रहा है, क्यों? अगर ऑल बॉयज आर ट्रैक्टर, देयरफॉर सम ट्रैक्टर्स आर बॉयज, वो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, सो देयरफॉर दिस सी इज नॉट राइट। हमें कैसा चाहिए? 1 राइट 2 रॉन्ग, और 2 राइट है तो फर्स्ट रॉन्ग, और ये दोनों केसेस राइट बनने चाहिए, ओके। तो डी देखते हैं, इधर 1 और 4 फॉलोस, ऑल बॉयज आर स्कूटर्स, सो ऑल बॉयज आर स्कूटर मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। और बोलता है नो ट्रैक्टर इज अ बॉय, ओके, सो ये आपका सेकंड केस राइट होना चाहिए, मतलब अगर पहला राइट है ऑल बॉयज आर स्कूटर, तो सेकंड केस आपका क्या होना चाहिए? गलत, ओके। ऑल बॉयज आर स्कूटर, ये केस राइट है, ये केस राइट है, ये केस राइट है, और बोला नो ट्रैक्टर इज अ बॉय, लेट्स सी देयर इज अ ट्रैक्टर, मतलब दैट मींस ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, सो दिस इज 1 and 4 you can say गलत नहीं है, and therefore this is not right। इधर 3 और 4 follows, 3 क्या बोलता है? some tractor are boys, या तो कुछ ट्रैक्टर बॉय है तो उस समय पे नो ट्रैक्टर इज अ बॉय वो गलत हो जाएगा, एंड व्हेन आई से नो ट्रैक्टर इज अ बॉय, ऑटोमेटिकली सम ट्रैक्टर आर बॉय वो गलत हो जाएगा। आई होप यू आर विथ मी, यस, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना, अगर सम ट्रैक्टर बॉय है तो एक भी ट्रैक्टर बॉय नहीं है, वो स्टेटमेंट तो गलत ही है ना, और जब मैं बोलूं नो ट्रैक्टर इज अ बॉय तो सम वाला भी गलत है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? चलिए ग्रेट, सो आंसर क्या होना चाहिए? ई, ओके, इधर 3 और 4 फॉलोस, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, एंड आगे बढ़ते हैं। तो यह परफेक्ट आंसर है, आगे देखने की कोशिश, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। सो ये 3 स्टेटमेंट है और 3 में से कंक्लूजन लाना है, बहुत मजेदार है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? ऑल बल्ब्स आर रेडियो, ऑल रेडियोज आर फैंस, नो फैन आर टेबल्स। बहुत इजी हो गया, ठीक है, काफी इजी हो गया, है ना। ऑल बल्ब आर रेडियो, ऑल रेडियोज आर फैंस, एंड नो फैन इज टेबल, ओके। पहला बोला सम फैंस आर बल्ब, कुछ फैंस बल्ब है, यस, हमने देखा था ऑल बल्ब अगर फैन है तो कुछ फैन बल्ब हो सकते हैं, ऑल ए आर बी है तो सम बी आर ए हो सकता है। ये कंक्लूजन मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया था, यस और नो? वापस समझा रहा हूं, दिमाग में डाल दो कि ऑल बी आर एफ है तो सम एफ आर बी हो सकता है, सो 1 इज राइट। नंबर 2, नो टेबल इज अ बल्ब, भैया कोई भी फैन टेबल नहीं है, सभी बल्ब फैन है, तो ऑब्वियसली ये बल्ब और टेबल कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सो दिस इज राइट। नंबर 3, सम रेडियोज आर बल्ब, ठीक है, सम रेडियोज आर बल्ब, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज राइट। सम टेबल्स आर रेडियो, सम टेबल्स आर रेडियो, ये पॉसिबल
नहीं है। सो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1, 2 एंड 3 फॉलोज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए परफेक्ट, ठीक है। सो आंसर हो जाना चाहिए आपका ए, दैट्स द परफेक्ट आंसर, ठीक है। एक और करते हैं, सम बुक्स आर बल्ब्स, इसको ध्यान से लिखना, सम बुक्स, ठीक है, बी भी मत कर देना, ठीक है। सम बुक्स आर बल्ब्स, ठीक है, ये दिया है। ऑल बिस्किट्स आर पेन्स, अब ये तो पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, और नो बल्ब इज अ बिस्किट, ओके। तो ये मुझे बिस्किट और पेन और बल्ब और बिस्किट, सो बल्ब और बिस्किट का कोई गणित है नहीं, सो देयरफॉर यू कैन से मैं बिस्किट बाहर रख देता हूं, दिस इज बिस्किट, एंड ऑल बिस्किट्स आर पेन, ऐसा हो सकता है, ऑल बिस्किट्स आर पेन, ऐसा भी हो सकता है, यस, ठीक है। पर बिस्किट बाहर है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बिस्किट आप यहां पे भी ऐसा कर सकते हो, ओके, बट बल्ब में नहीं जाएगा, दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, ओके, बल्ब में नहीं जाएगा, दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। चलो ट्राई करते हैं। पहला सेंटेंस, सम बुक्स आर नॉट बिस्किट, सम बुक्स आर नॉट बिस्किट, ठीक है। सम बुक्स विच आर बल्ब्स आर फॉर श्योर नॉट बिस्किट्स, सो ये तो पक्का राइट होना चाहिए, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ बुक्स बिस्किट हो सकते हैं, पर जो बुक्स बल्ब्स है वो तो पक्का बिस्किट नहीं होंगे, therefore 1 is perfectly valid, okay. Number 2, bulbs are not pens, bulbs are not pen, आप देख सकते हैं मैंने ये केस आपका ड्रॉ करा, या मैंने हर केस में तो यही ड्रॉ करा है, ठीक है। there is a possibility that bulbs are not pen, but there is a possibility that bulbs are pen, so therefore this is not right. Number 3, some books are not pens, ठीक है। अब ये बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि अगर ये बिस्किट है और मैं यहां पे पूरा का पूरा ऐसा ड्रॉ कर दूं, एंड दिस बिकम्स माय पेन्स, एंड देयरफॉर ऑल बुक्स गेट इनटू पेन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस और नो, सो थर्ड गलत हो जाएगा, यस। और नंबर 4, सम पेन्स आर नॉट बल्ब्स, ओके, सम पेन्स, ये पूरी पेन है, उस पेन में जो बिस्किट है, जो बिस्किट है वो बल्ब नहीं है, ठीक है। पूरे पेन में जितनी भी चीजें बिस्किट है वो बल्ब नहीं है, ये तो पक्का है। सो देयरफॉर 4 and 1 दे आर द परफेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा आपका ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, यस। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज इंडीड आंसर इज ए। चलिए दोस्तों, ये अगला एक मजेदार सा सवाल आ रहा है, क्या बोलता है? ऑल बुक्स आर नोट्स, so this is books, this is notes, some notes are watches, okay, some notes are watches, so watches ऐसे भी हो सकता है, watches ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रहे, you have to develop, you can say all possibilities, अगर आपने सब possibility workout करी, so that is where your capability is tested, yes, ध्यान रहे, legal career में आप हर consequences को समझ पाते हैं, and that is why legal career में syllogism plays a very important role, ठीक है। जो स्टूडेंट्स सिलोजिज्म में अच्छे हैं उन लोगों के लिए लीगल करियर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उन लोगों के पॉलिटिकल करियर बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों के मैनेजमेंट के करियर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर ये बोला नो वॉच इज अ पेंसिल, ठीक है, ये वॉच है और हम बात करें पेंसिल, सो ये रहा पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ठीक है। ये पक्का है कि ये पेंसिल वॉच में घुसेगा नहीं, ओके। चलिए देखते हैं, पहला बोला इन्होंने सम वॉचेस आर बुक्स, सम वॉचेस आर बुक, सम वॉचेस, इस केस में राइट है, इस केस में राइट नहीं है, सो पहला राइट नहीं है। नंबर 2, सम नोट्स आर पेंसिल्स, ठीक है, सम नोट्स, आप देखिए इस केस में राइट है, सम नोट्स आर पेंसिल, सम नोट्स आर पेंसिल, इस केस में राइट नहीं है, सो देयरफॉर सेकंड इज आल्सो नॉट राइट, ओके। नंबर 3, नो वॉच इज अ बुक, नो वॉच इज अ बुक, इस केस में परफेक्टली राइट है, इस केस में परफेक्टली रॉन्ग है, ओके, सो दैट मींस थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग, ओके। एंड फोर्थ क्या बोलता है? सम नोट्स आर नॉट पेंसिल्स, सम नोट्स आर नॉट पेंसिल्स, कुछ नोट्स पेंसिल नहीं है, ओके। सो जो भी नोट्स वॉचेस है, जो भी नोट्स वॉचेस है वो पेंसिल नहीं है, यस। सो जो भी नोट पेंसिल मतलब वॉचेस है वो पेंसिल नहीं है, एंड देयरफॉर फोर्थ तो पक्का राइट है, ठीक है, फोर्थ राइट है, बराबर है। अब भैया अकेला फोर्थ तो कहीं दिख नहीं रहा है कि ओनली फोर्थ राइट, ठीक है। सो देखो ये इधर और वाले में गलत है, ये 1 3 ये गलत हो गया, 1 2 3 गलत हो गया, ओनली 1 and 4 ये भी गलत हो गया। अब ये बोलता है इधर 1 and 3
एंड 4 फॉलोज। सो वो लॉजिक तो बिल्कुल बैठा है कि 4 तो पक्का राइट है। अब ये देखना पड़ेगा दैट इधर 1 और 3 फॉलोज और नॉट। चेक करते हैं। सम वॉचेस आर बुक्स, ठीक है, सॉरी 1 एंड 2 नहीं देखेंगे अपन, 1 एंड 3 देखेंगे, ठीक है। क्या बोला? सम वॉचेस आर बुक्स एंड नो वॉच इज अ बुक, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी इधर और होगा उसका जनरल नेचर क्या होगा? एक स्टेटमेंट सम वाला होगा और दूसरा स्टेटमेंट नो वाला होगा, ये पक्का है। ओके, सो एक स्टेटमेंट सम वाला और एक होगा नो वाला, और उसके मुताबिक ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका ई। ओके, चलिए ग्रेट, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन सही है। चलिए, सो वी हैव अ न्यू क्वेश्चन एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशंस डिस्कशन। इस सेशन के साथ आई विल बी गिविंग यू गुड क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको protalentdigital.com से मिलेंगे, उसको लेना भूलिएगा मत। ओके, चलिए देखते हैं। इन्होंने क्या बोला? सम ब्लॉन्ड्स आर इंडियंस, ओके, सम एशियंस आर ब्लॉन्ड्स। एशियन ऐसे भी हो सकते हैं, एशियन ऐसे भी हो सकता है। ओके, नो एशियन इज ब्रूनेट, ओके, सो दिस इज ब्लॉन्ड, ओके, और ब्रूनेट बोला है, नो एशियन इज ब्रूनेट, ओके, सो ब्रूनेट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, पर वो एशियन के साथ कहीं मिक्स होंगे नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। सम इंडियंस आर एशियंस, इस केस में राइट है, इस केस में राइट नहीं है। हमने बोला था हर केस में राइट होना चाहिए, सो दिस इज गॉन। ओके, सम ब्लॉन्ड्स आर ब्रूनेट, सम ब्लॉन्ड्स आर ब्रूनेट, इस केस में राइट है, इस केस में राइट नहीं है, सो दिस इज सेकंड इज रॉन्ग। सो सम ब्रूनेट्स आर नॉट ब्लॉन्ड्स, हमें यह पता है कि ये जो ब्रूनेट है, ठीक है, और जो एशियन है वो दो सेम नहीं है, विच मीन्स ये ब्रूनेट अगर मैं यहां पे पूरा का पूरा ब्रूनेट डाल दूं, ठीक है, तो भी काम चल सकता है। दैट मीन्स अगर बोलेंगे सम ब्रूनेट्स आर नॉट ब्लॉन्ड्स, ये बोलना सही नहीं है। yes or no? So this is third is also not right. I have developed one case for you. Okay, now ये बोलता है some blondes are not brunettes, some blondes which are Asians are for sure not brunette. yes, ठीक है, I'm sure you are with me, है ना। जो भी blonde Asian है they are not brunette. That means fourth तो पक्का right है, ठीक है। Do we have only fourth? yes, so we have fourth follow. okay, चलिए ग्रेट, सो दिस इज द आंसर, दैट इज डी। ओके, चलिए ग्रेट, सो आई थिंक आई हैव गिवन अ बेसिक स्टार्ट। ओके, मैंने आपको एक बेसिक स्टार्टअप दे दिया है इस पूरी कहानी को समझने के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपको काफी फायदा करेगा। प्लीज गो थ्रू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेक दिस पीडीएफ from protalentdigital.com. At protalentdigital.com we are giving you a very good support for your preparation. So आप वहां से लेना भूलिएगा मत। और साथ साथ में, ठीक है, इसके बाद एक और सेशन आएगा जहां पे हम और इन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा और डेवलप करेंगे। ओके, चलिए ग्रेट, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस। Thank you very much, and if you like this, make sure you like this video, share this channel to large number of people and subscribe our channel. Okay, thank you very much and all the best.